Hello students, in today's video we are going to do Maharashtra State Board Class 9 ka English Kumar Bharti lesson number 1.3. Have you ever seen? This lesson I have already explained in another video. If you have not seen, please do visit my channel and see this video. In this video we are going to do textbook activities of this lesson, yani English workshop, warming up, etc., which is there in the textbook in this lesson we are going to do in today's video. But I will suggest that before you see this video, do see that video on the explanation part of the lesson so that you understand question answers and activities better. Okay, so let us start with the warming up section, which is before your lesson. Have you ever seen 1.3 lesson? Uske pehle jo warming up hai, let us start with that. Now in this we have first activity, homographs. Do you know what are homographs? Words that have same spelling but differ in meaning when used in different contexts are called homographs. कोई भी वर्ड जिसका स्पेलिंग सेम है बट हम अगर अलग अलग लाइन में यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है. वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, या यू कैन से साउंड सेम है, बट व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस उसका मीनिंग अलग हो जाता है. सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ्स. Let me explain you with the help of example. A temple fair attracts a lot of crowd. Now here fair, temple fair yani temple exhibition. Okay, attracts lot of crowds. But if you see this sentence, her performance in the test was fair. Here fair means good. Okay, both words have same spelling, same sound, but when used in different sentences they mean different. Okay. Let us understand with one more example. A rose is the king of flowers. The sun rose with a golden glow. Now if you see rose, word if you see same, spelling is same, but in first sentence it means a flower. Okay. But in second sentence it is past tense of rise. Ugna, nikalna. Okay, rise ka past tense rose. So such words, which have same spelling, but when they used in different contexts they have different meanings. Such words are called homographs. Okay, now think of 5 homographs and list them below, then write 2 sentences of your own to bring out the difference in the meaning. Now what you have to do is you have to write homographs like this, write 5 words, and then how they can be used in different ways you have to write. यानी homographs आपको लिखना है, but you have to explain with the help of examples. Let me help you out, but if you see, you will get thousands of such words. Okay, let us start with the first word, coat. सुना है coat word? Okay, can you give 2 sentences wherein they have different meaning? Okay, see, please apply 2 coats of paint on the wall. Wear this coat before you go out. पहले वाले सेंटेंस में 2 coats है ना, 2 layers. सेकंड वाले सेंटेंस में कोट यानी जो हम शर्ट के ऊपर पहनते हैं, जैकेट टाइप. ओके, तो स्पेलिंग इज सेम बट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दे मीन डिफरेंट. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, फाइन. नाउ आई एम फाइन नाउ, मेक फाइन पाउडर ऑफ चॉक. इन फर्स्ट सेंटेंस फाइन मीन्स ओके, ठीक हूँ मैं अभी, बट इन सेकेंड सेंटेंस फाइन मीन्स एकदम बारीक पाउडर करो चॉक का. तो they mean different in, though spelling is same, their meaning differs in different sentences. Okay, right. Turn to your right. You are right, I think. In first sentence if you see, right is direction, but in second sentence right का meaning है correct. Next example, object. I want some round shape object. You always object to what I say. In first sentence object यानी कोई thing, and second sentence में object means opposition. Okay, so object spelling is same but their meaning is different. So here it acts as homographs. Last example, minute. Okay, can you hold on for a minute? Or you can say, can you observe minute particles in the water? In first sentence minute यानी जो टाइम, और सेकंड सेंटेंस का माइन्यूट इसको पढ़ते हैं, दो स्पेलिंग इज सेम. माइन्यूट यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल. Okay, so I have given you 5 examples. If you
have a close look, you will find many such examples from daily life which are homographs. So I hope you have understood what are homographs. Okay, let us now switch to the next activity. When words with the same spelling or pronunciations are used in such a way that they convey more than one meaning, the figure of speech involved is called pun. अभी जो मैंने बताया होमोग्राफ्स, तो अभी कोई भी सेंटेंस में अगर ऐसे यूज़ किया जाता है होमोग्राफ्स की, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन सेम है बट अलग अलग मीनिंग निकलती है, तो जो फिगर ऑफ स्पीच उसको बोलते हैं, पोएम में फिगर ऑफ स्पीच जो उसको बोलते हैं, दैट फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पन. ओके, पन इज़ अ प्ले अपॉन वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, हेलो हाउ इज़ लाइफ. अभी इसको हमने अगर अलग अलग करके लिखा हेल ओ इट्स अ स्ट्राइफ, ओके, तो मीनिंग अलग हो जाएगी. तो ये जो पोएम हमने की थी, हैव यू एवर सीन, आपने देखी होगी, मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हर एक सेंटेंस में पन यूज़ किया है. पन इज़ व्हाट एक्चुअली, एज आई टोल्ड यू, वर्ड्स व्हेन दे यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट दे डिफर इन मीनिंग, बट उनका स्पेलिंग सेम है. तो हमने बहुत सारे पन पढ़े थे पोएम में. ओके, अगर आपको याद नहीं है तो यू कैन वंस अगेन हैव अ लुक ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट इन माई अनदर वीडियो. Now find some other examples of pun with the help of parents or teacher. पोएम का पन एग्जाम्पल छोड़ के आपको कुछ अपने बताने हैं. Okay, let me help you up. Do you want a cap for your knee? अभी कैप जनरली हम सर पे पहनते हैं, बट नी का कैप भी रहता है. जिनको नी में पेन रहता है तो उनको सपोर्ट देने के लिए जो पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कैप. ओके, कैन यू क्रॉस द ब्रिज ऑफ योर नोज. ओके, नोज की भी ब्रिज रहती है, जैसे रिवर के ऊपर ब्रिज रहती है रोड के ऊपर. वेयर डू यू फाइंड जायंट स्नेल्स. जायंट यानी बहुत बड़े, स्नेल्स आपको पता है क्रिएचर, तो उसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जायंट्स नेल्स. ओके, लिविंग लाइफ डिपेंड्स ऑन द लिवर. तो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पन. यू कैन फाइंड अदर्स फ्रॉम योर डेली लाइफ. ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज इन पोएट्री. व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, नॉट टू गेट एन आंसर बट टू एम्फसाइज अ पॉइंट और फैक्ट, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन. आपने पोएम में बहुत बार देखा होगा क्वेश्चन मार्क रहता है एंड ऑफ द लाइन में. तो क्वेश्चन मार्क वाले जनरली क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. तो पोएम में जो है क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पोएट इज नॉट आस्किंग क्वेश्चन बट जस्ट टू गिव एन एम्फेसिस, क्वेश्चन इज आस्क्ड or you can say question mark is put. It is not for the purpose of asking question but to give emphasis to a certain thing. तो यानी जिसका आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, कि जस्ट एक एम्फेसिस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सच सेंटेंस इन पोएम इट इज कॉल्ड, फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड इंटरोगेशन. नाउ सी विथ एन एग्जाम्पल, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, यानी देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड. इजंट इट टाइम फॉर द ऑटम्स ग्लो. ऑटम के लिए शाइन होने का टाइम नहीं है. तो लाइक दिस इज जस्ट एन एम्फेसिस, नॉट अ क्वेश्चन. From a popular book of poem, the internet, write down 3-4 examples of interrogation used in the poetry. अभी आपको कोई भी पोएट्री लेनी है, उसमें से इंट्रोगेशन बताना है, यानी जिसको लास्ट में क्वेश्चन मार्क है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ रेटोरिकल क्वेश्चन, यानी वेयर आंसर इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. सो आई हैव टेकन सर्टन एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर 8th स्टैंडर्ड पोएम, वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर. वॉट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर. आपको याद होगा 8th स्टैंडर्ड में ये पोएम्स की थी. वाई लैमेंट ऑन इट्स फॉल. 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पोएम में भी था, बारिश होती है तो उसके लिए रिग्रेट क्यों करने का अगर उससे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं तो. वॉट इज़ इन अ नेम. नाम में क्या रखा है. So these are certain examples I've given. You can write any such examples from the poems. You can have a look on the net. You can find many other poems and pick out sentences from there which have interrogation, figure of speech. Okay. Chalo, now this completes our warming up. Let's start with English workshop. जो lesson के poem के बाद में English workshop है. Now from each line in the poem, pick out the word that is homograph. Write its meaning in the context of the phrase used in the poem. Then write the other meaning implied in the question. अभी आपने देखा पोएम में 3 स्टैंजा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंजा. हर एक स्टैंजा में कुछ वर्ड यूज़ किए हैं विच हैव डबल मीनिंग. विच हैव डबल मीनिंग. तो आपको वो वर्ड पिकअप करना है पोएम में से. अभी फर्स्ट स्टैंजा में 4 वर्ड है, सेकंड स्टैंजा में 4 वर्ड है, थर्ड स्टैंजा में 4 वर्ड है.
तो आपको वो वर्ड पिकअप करनी है, कौन से वर्ड हैं विच हैव गॉट डबल मीनिंग, एंड देन यू हैव टू राइट मीनिंग्स, बोथ द मीनिंग्स. ओके, फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू. वेरी फर्स्ट लाइन में क्या है? बेड. बेड का एक मीनिंग रहता है पीस ऑफ फर्नीचर जिसपे हम सोते हैं. दूसरा मीनिंग रहता है बॉटम ऑफ द रिवर और सी. ओके, तो नेक्स्ट वर्ड कैन यू फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा में आप देखिए, राइट, हेड. हेड का एक मीनिंग है सर, हमारा अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. दूसरा मीनिंग है हिटिंग पार्ट ऑफ अ हैमर, हैमर को जिसे हिट करते हैं वो पार्ट. थर्ड लाइन में फुट. फुट हैज गॉट डबल मीनिंग. बता सकते हो क्या डबल मीनिंग? एक होता है हमारा बॉडी पार्ट ऑन विच वी स्टैंड, दूसरा होता है बेस ऑफ अ माउंटेन. फोर्थ लाइन में आपको कोई मिला डबल मीनिंग वाला वर्ड? यस, होज. होज के दो मीनिंग्स कौन सी है? एक मीनिंग है पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स यानी सॉक्स, और यू कैन से टाइट फिटिंग लेगिंग्स. अनदर मीनिंग ऑफ होज इज फ्लेक्सिबल ट्यूब, जो हम गार्डनिंग के लिए पानी देते हैं ना गार्डन में, फ्लेक्सिबल ट्यूब, उसको होज बोलते हैं. ओके, तो होज हैज गॉट डबल मीनिंग. तो फर्स्ट स्टैंजा में वी गॉट दीज 4 वर्ड्स विच हैव गॉट डबल मीनिंग. ओके, लाइक दिस यू हैव टू pick out words from second stanza and then you have to give the meanings. Okay, second stanza में I, first line में I की 2 मीनिंग है. एक होता है विशनरी आर्गन यानी जैसे हम देखते हैं. दूसरा मीनिंग है इसका होल एट द एंड ऑफ अ नीडल. नीडल जिसमें हम धागा डालते हैं, होल होता है उसको, तो उसको भी हम नीडल का आई बोलते हैं. ओके, देन विंग. सेकंड स्टैंजा में क्या है? विंग. उसका डबल मीनिंग है. क्या डबल मीनिंग है? एक तो होता है बर्ड्स जिससे उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाइंग एड, जिसकी मदद से बर्ड्स उड़ते हैं. दूसरा क्या है? पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग. 2 मीनिंग्स है उसकी, राइट. देन थर्ड लाइन में, सेकंड स्टैंजा की थर्ड लाइन में रिब्स. रिब्स हैव गॉट डबल मीनिंग. एक मीनिंग होती है जो हमारी बॉडी में स्पाइन के इधर से लेके नीचे तक कर्व्ड बोन्स रहते हैं. ठीक. दूसरा है वायर मेश ऑफ अम्ब्रेला. अम्ब्रेला का जो कपड़ा जो तार पे लगा हुआ रहता है, दैट इज वायर. वो वायर को हम लोग बोलते हैं रिब्स ऑफ अम्ब्रेला. लास्ट लाइन में वी गॉट दिस वर्ड ट्रंक. ट्रंक हैज गॉट 2 मीनिंग. एक है लार्ज स्टोरेज बैग, जो पहले के ज़माने में लोग रखते थे ना बड़ी सी बैग मेटल की, उसको बोलते थे ट्रंक, यानी लार्ज स्टोरेज बैग. और एक मीनिंग है उसकी वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री. एक और भी ट्रंक रहता है एलिफेंट का ट्रंक, बट क्योंकि पोएम में उसका ये दोनों मीनिंग है तो वी हैव नॉट मेंशन एलिफेंट ट्रंक, क्योंकि इसमें लिखा है कि पोएम में इसका 2 क्या मीनिंग है, इसके लिए हमने वही लिखा है. ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम. इट हैज़ गॉट टीथ वर्ड विच हैज़ गॉट डबल मीनिंग. टीथ का 2 मीनिंग कौन सा है? एक तो होता है जो माउथ में हम च्यू करते हैं, वाइट कलर के ऑर्गन, दैट इज च्यूइंग ऑर्गन इन माउथ. दूसरा है मेटल प्रॉन्ग्स ऑन गार्डन टूल. गार्डन में आपने देखा होगा ऐसे ऊपर डंडी रहती है और नीचे ऐसे प्रॉन्ग्स रहते हैं, जिसके मदद से माली लीव वगैरह कचरा ऐसे गार्डन का जमा करते हैं. तो वो जो ऐसे होता है उसको बोलते हैं टीथ ऑफ द दिस एक्स. उसके टीथ रहते हैं. ओके, देन वी हैव हैंड्स. हैंड की 2 मीनिंग कौन सी है? एक तो हमारे हैंड जैसे हम खाते पीते हैं, कुछ उठाते हैं. ओके, और बॉडी पार्ट हेल्पिंग इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स. दूसरा हैंड का मतलब क्या है? पॉइंटर्स ऑन अ क्लॉक. स्मॉल हैंड, लॉन्ग हैंड आपने देखा है क्लॉक में जो टाइम दिखाता है उसको भी हैंड बोलते हैं. ओके, अभी लास्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन में है वर्ड प्लॉट. डू यू नो डबल मीनिंग ऑफ प्लॉट? एक मीनिंग होता है इविल और विकेड प्लान, जो क्रूअल आइडिया जो जिसको आप बोल सकते हो. और दूसरा प्लॉट होता है स्मॉल एरिया ऑफ लैंड. प्लॉट जिस पे कुछ बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, कि स्मॉल एरिया ऑफ लैंड. ओके, लास्ट लाइन में वी हैव गॉट द वर्ड बार्क. बार्क हैज गॉट डबल मीनिंग. वन इज जो डॉग आवाज करता है ना, क्राई ऑफ डॉग बार्क्स, तो वो वाला बार्क. दूसरा बार्क होता है हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री बार्क. आपने सुना होगा, निकालते हैं जिसमें से पेपर बनता है. सो ऑल दीज 3 स्टैंजाज में हर एक लाइन में इफ यू सी देयर इज अ वर्ड which has got double meaning, so we have to pick up that word and we have to write both the meanings of that. I hope this is okay with you.
Okay, so now let's move over to the second activity of English workshop, which says write 2 lines from this poem which you find most humorous. Humorous यानी जो पढ़ के आपको हंसी आ रही है. Justify your choice. पोएम में से 2 लाइन्स आपको बतानी है जो आपको पढ़ के हंसी आ रही है. Okay, क्यों हंसी आ रही है वो बताना है. अभी यू कैन राइट वॉट एवर यू फील लाइक. मुझे जो 2 लाइन्स पढ़ के हंसी आई तो वो मैंने लिखी है. वन इज कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ अ पैरासोल. जैसे गुदगुदी करते हैं ना इंसानों को, तो आप पैरासोल को गुदगुदी कर सकते हो, उसके रिप्स पे टिकल कर सकते हो. तो ये लाइन पढ़ के मुझे हंसी आई बिकॉज ह्यूमन बींग्स को टिकलिंग इज डन ऑन फॉर चिल्ड्रेन, नॉट इन द केस ऑफ पैरासोल यानी अम्ब्रेला. तो व्हेन आई रेड दिस लाइन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, सो दिस लाइन आई फील इट इज ह्यूमरस. वन मोर लाइन, हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोस. अभी हम लोगों को पैर में जो उंगलियां होती हैं उसको बोलते हैं टोस. तो अगर माउंटेन को फुट है तो उसमें टोज हैं क्या? तो आई फेल्ट लाइक लाफिंग, क्योंकि माउंटेन को तो टोज नहीं हो सकते, बट उनके बेस को, माउंटेन के बेस को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ माउंटेन. तो व्हेन आई रेड दिस लाइन आई फेल्ट लाइक लाफिंग. सो दीज 2 lines are humorous for me. Okay, so students, you can write any of the 2 lines which you feel they are humorous for you. Okay, no hard and fast rule that whatever I have written you have to write them. Okay, now next let us come to the next activity. Find from the poem 3 examples of each. अभी हमेशा poem में figure of speech use किया जाता है. So in this poem also certain figure of speeches have been used. 4 of them are given below: interrogation, pun, personification, alliteration. Now you have to write 3 examples of each figure of speech from the poem. Okay, now let us start with interrogation. Interrogation क्या होता है? Rhetorical question where answer is not expected from you but it is a question. So end में उसके question mark रहेगी sentence के. So I've written these 3 examples from the poem. Why doesn't the wing of a building fly? Does the needle ever wink its eye? Or open the trunk of a tree at all. If you see all 3 lines they have got question mark. Okay, interrogation का example है. At the same time it is just a rhetorical question. Answer is not expected from you. Okay. Next is pun. Pun क्या होता है? I told you when one word can have 2 meanings when used in different contexts. So examples from poem. Can you tickle the rips of a parasol? Okay. Have the hands of a clock any left or right? Are the teeth of a rake ever going to bite? Abhi if you see, rips have got 2 meaning, hands have got 2 meaning, teeth have got 2 meaning. So when one word which has got more than 1 meaning when used in different ways, so such figure of speech is pun. तो ये जो 3 इनफैक्ट आप देखोगे हर एक लाइन में, पोएम की हर एक लाइन में पन यूज़ किया है. तो आप पूरे पोएम में से कोई भी एग्जाम्पल लिखोगे तो इट इज़ ओके बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन pun figure of speech is used. So I have written only 3 since they have asked for 3. Okay. Personification. Now what is personification? When human quality is given to non-living thing. When human quality is given to non-living, figure of speech is personification. तो we have to write examples from poem जहाँ पे personification use किया है. Okay, let me help you out. Has the foot of the mountain any toes? अभी foot जो है it is a human quality which is given to mountain. Mountain क्या है? non-living है. Does the needle ever wink its eye? कि wink यानी आँख पड़पड़ाना. Winking is human being का quality which is been given to needle यानी non-living को. और a single hair from hammer's head. Hammer क्या होता है? हथौड़ी. हथौड़ी के सर पे hair. कि अभी hair किसको होता है? Human being को. This is given, this quality is given to hammer which is a non-living. So whenever a non-living is given a human quality, figure of speech is personification. So these 3 are examples of personification. क्योंकि mountain non-living है, needle non-living है, hammer non-living है, उनको human quality दिया गया है foot, wing and hair का. So these are example of personification. Now let us come to the last, alliteration. What is alliteration? When sound is repeated for poetic effect. एक लाइन में 2 या 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जिसका स्टार्टिंग अल्फाबेट सेम होगा
या साउंड सेम होगा, तो सच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एलिट्रेशन. लेट्स सी सम एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम. और अ सिंगल हेयर फ्रॉम हैमर्स हेड. इफ यू सी हियर एच साउंड जो है, हर 3 वर्ड हैं जिसके बिगनिंग में एच है, तो एच साउंड इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन. और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल. नाउ इफ यू सी टी, द में, ट्रंक में, ट्री में, सो टी इज रिपीटेड. 3 वर्ड्स में आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में टी वर्ड है, यानी टी साउंड इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. सो फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन. And what is the sound of the bird's bark? BB sound is repeated. So these are 3 examples of alliteration. Is it fine? Okay. Now last activity of this lesson. Read the following sentences carefully, then fill in the blanks using appropriate words from the bracket to make puns. Again, puns यानी words which have got double meaning. Struck, numbered, too tired, developed, put down, homeless, old fashioned, reaction. These are the words which have got double meaning. So now certain sentences are given to you. You have to put these words in the blanks so that they act as puns. You have to make puns using these words. Okay, let us read the first example. She had a photographic memory but never dash it. तो क्या लिख सकते हैं? photographic memory थी but क्या नहीं किया? develop नहीं किया. So developed. He was struggling to figure out how lightning works when it dash him. कि lightning ने क्या किया उसको? struck him. Okay. Every calendar's days are dash. कैलेंडर के डेज को क्या लिख सकते हो आप? numbered. Okay. A bicycle cannot stand on its own because it is dash. बाइसाइकिल क्यों नहीं खड़ी रह सकती? because it is too tired. Okay. 2 टायर होते हैं साइकिल को, बट यहाँ पे कैसे देखा है? बहुत थक गई है इसके लिए खड़ी नहीं रह सकती. सो इट इज एक्टिंग एज अ पन. आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी. इट इज इम्पॉसिबल टू डैश द बुक. ओके, बुक को क्या कर सकते हैं? पुट डाउन. ओके, यू हैव टू ओनली पिक आउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड्स विच आर गिवन हियर. ओके, आई वुड टेल यू अ केमिस्ट्री जोक बट आई नो आई वुडंट गेट अ डैश. केमिस्ट्री का जोक बताऊंगा पर क्या नहीं मिलेगा? रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन रहता है ना, और एक होता है ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन. तो इसके लिए रिएक्शन इज एक्टिंग एज अ पन. व्हाट डू यू कॉल वॉटसन व्हेन शर्लॉक इजंट अराउंड? आपको पता है शर्लॉक होम्स पूरा नाम था. अगर व्हाट डू यू कॉल वॉटसन व्हेन शर्लॉक इजंट होम, शर्लॉक घर में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? होम्स के वजह पे होमलेस. I would tell a history joke but it's too dash. हिस्ट्री का जोक बताऊंगा but it is too old fashioned. कि हिस्ट्री तो बहुत ancient time की है तो it is old fashioned. So if you see, these words are used in a way so that they act as puns. Okay, so this completes all the activities of this lesson. I hope you understood. Thank you for watching this video.